The core of a man's spirit comes from new experiences. और शायद इसीलिए हम पहाड़ों की तरफ लौट आते हैं, where rivers sing louder than the cities, cold winds touch your soul and every trail feels alive. यहाँ सिर्फ ट्रैक नहीं होते, you feel every moment. So for the next few minutes, leave the world behind and breathe the Himalayas. Welcome to the Har Ki Doon. Sometimes the best journeys start before sunrise. और शायद इसीलिए आज हम सुबह जल्दी उठ गए थे। सुबह के 6:30 बजे हम देहरादून से सांकरी के लिए बस में निकले। थोड़ी नींद, थोड़ी एक्साइटमेंट और सामने पहाड़ों की रोड। जैसे जैसे सिटी पीछे छूट रही थी, वैसे वैसे व्यूज़ और भी अनरियल से लगने लगे। कोल्ड ब्रिज, सनराइज़ और पाइन फॉरेस्ट, और वो फीलिंग कि अब फाइनली माउंटेन्स शुरू हो रहे हैं। हर की दून का सफ़र ऑफिशियली यहीं से शुरू हो जाता है। Every journey has a way of testing your patience. Just when we thought the road to Sakri would be smooth, our tire gave up in the middle of nowhere. For a moment, the mountains stood still, and so did we. But that's the thing about adventures. Sometimes the delays become part of the story. I'm stuck in a prison of doubt. गुड इवनिंग आप सभी को। अभी 5 बज रहे हैं इवनिंग के और हम सुबह चले थे 6:30 पे देहरादून से। तो जैसे तैसे पहुँचे हैं सांकरी में और वो गाड़ी भी ख़राब हो गई थी आधे रास्ते में। वी आर लुकिंग टू गो टू गंगाड़। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको दिखाते हैं आगे। द रोड फ्रॉम सांकरी to Gangad wasn't easy. Every turn was rough. Every stretch demanded a little more patience. But somewhere between the dust, the silence, and those endless mountain routes, I stopped thinking about where I was going. And for the first time in a long while, I was simply present. Maybe that's what the mountains do. They don't just take you to new places, they bring you back to yourself. तो गाइज हम अभी गंगाड़ में पहुंच चुके हैं और हमने 5:30 के अप्रोक्स सांकरी से गाड़ी पकड़ी थी। लोकल गाड़ी अवेलेबल्स रहती हैं वहाँ, तो आप जब भी आओगे वहाँ तो आपको लोकल गाड़ी मिल जाती हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू रीच देयर टाइमली। तो अभी हम यहाँ से ओसला के लिए दूसरी गाड़ी पकड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ओसला 8 से 10 किलोमीटर पड़ता है बेसिकली। तो हम सोच रहे हैं ओसला इस साइड है एंड सांकरी हम उस साइड से आए थे। After a bit of waiting, we somehow managed to catch the last vehicle to Osla. No crowds, no noise, just mountains stretching in every direction. And with every turn, Harkidun felt a little closer. कहाँ से आए ओसला से? सेवन 20 हो चुका है एंड अभी फाइनली हम ओसला में पहुंच चुके हैं। अपने आज के फाइनल डेस्टिनेशन क्या बोलना चाहेंगे अभिषेक भाई? व्हाट अभिषेक? सुबह 6 बजे का जो सफ़र था यहाँ पर समाप्त होता है। हम आ चुके हैं अपने आज के फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा विलेज, ओसला विलेज। और यहाँ के नज़ारे मतलब हेवन, मतलब मैं तो शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता।
He is from और Kanpur. मेरे जैसे शहरी आदमी के लिए तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और ये आपकी वजह से संभव हो पाया है। कल करते हैं हर की दून का ट्रैक। और Let's कल go, let's go. आज डिनर वगैरह करके करते हैं। By the time we reached Osla, all we needed was a place to rest. We found a small homestay, but what made the evening special wasn't the room or the view. It was two little friends we met there, Arav and Priyans. What started as a simple conversation turned into an evening full of laughter, dancing, and countless small moments. And somewhere between the endless energy and carefree smiles, I found a piece of my own childhood. The kind of childhood that never worried about tomorrow and never needed a reason to be happy. As the day ended with a warm meal and good company, it reminded me that sometimes the best part of traveling isn't the places you visit, it's the people who become a part of your journey. How many yesterdays are between us now? गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओसला विलेज। सुबह के बज रहे हैं 7। हम उठ गए थे, मैं तो सुबह 5 बजे उठ गया था, बट सब होप नहीं कर रहे थे कि बारिश लगेगी यहाँ। बट जैसे ही सुबह उठे तो बारिश ने सरप्राइज कर दिया। काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है, बट क्या करें, बारिश हो रही है। और जो यहाँ से ऊपर का ट्रैक करना था हमें हरकी-दून का, वो 14 किलोमीटर का ट्रैक है। और सोच रहे हैं क्या करें, बारिश में करें या बारिश रुकने का वेट करें। देखते हैं आगे क्या प्लान बनाते हैं हम आगे। Let's see. गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरकी-दून ट्रैक। अभी हमने ट्रैक स्टार्ट किया है, जस्ट 10 मिनट ही हुए हमें, और होपफुली बारिश रुक गई थी। और अभी हम जा रहे हैं, हरकी-दून की तरफ जा रहे हैं। अभी 9:45 हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट हमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। 3-4 घंटे में हम कवर कर लेंगे। ट्रैक अच्छा है, अच्छे सारे सीनिक व्यूज़ हैं रास्ते में। अभी ट्रैक करते हैं आगे, चलिए। Somewhere between Osla and Harkidun, surrounded by these dense Himalayan forests, the journey starts feeling less like a trek and more like a conversation with myself. The trail is not easy. Every climb slows you down. Every kilometer makes you earn the next one. But that's the beauty of it. In everyday life, we are always rushing towards something, a goal or a plan. Out here, the mountains quietly remind you that not everything valuable comes quickly. और शायद इसीलिए हम पहाड़ इतने अलग लगते हैं। यहाँ कोई नॉइज़ नहीं है, नो कंपटीशन, बस एक रास्ता है जो धीरे धीरे आपको आपके अंदर तक ले जाता है। As I walk through
these dense forests, I realized that growth often looks exactly like this, uncertain, slow, and sometimes uncomfortable too. Yet every step matters. The mountains don't teach through words, they teach through distance, silence, and patience. और जब आप उनकी बात सुनना सीख जाते हो तब समझ आता है कि लाइफ का पर्पस हमेशा आगे पहुंचना नहीं होता है। कभी कभी पर्पस बस इतना होता है कि आप बस पूरी तरह उस पल को जी पाओ जिसमें आप चल रहे हो। एंड राइट नाउ इन द मिडिल ऑफ दीज हिमालयाज दैट फील्स लाइक इनफ। अभी हाफ मिडवे पहुंच चुके हैं हम। हर की दून 2-3 किलोमीटर बचा होगा और अभी से काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिख रहे हैं। यहाँ से पूरी ओसला जो वैली है वो दिखती है, पूरी हरकीदून वैली है और ओसला विलेज भी दिखता है। और ये पूरी पीक दिख रही है, ये हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ की शिवालिक रेंज काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ से आपको व्यूज़ दिखाता हूँ आगे। अभी हम हरकीदून बस जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। हार्डली 1 किलोमीटर बचा है हरकीदून। वो जो बड़ा सा माउंटेन दिख रहा है आपको, उसके नीचे ही हरकीदून है। जस्ट साइड से रिवर बह रही है। अभी आगे जाके आपको हरकीदून दिखाते हैं। तो इट्स 2:45 हो रहा है अभी एंड 9:30 पे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था ओसला विलेज से। तो अच्छे खासे टाइम में हम हरकीदून पहुंच चुके हैं। इट वाज वर्थ वॉकिंग ऑल द ट्रेल, ट्रैकिंग द ट्रेल। वर्थ था पूरा ट्रैक को अच्छे से चलना। फॉर दिस व्यू, दिस इज द पीस, लाइक what could be better than this piece? See Manjeet and Abhishek are ordering doing nothing's better than this view. क्या कर रहा है? अरे विक्ट्री। अभी हम नहाएंगे। वी आर ट्राइंग टू टेक अ बाथ। इट्स फ्रीकिंग कोल्ड हियर बट लेट्स सी, वी गोना डू इट एनीवेज। लेट्स टेक अ बाथ देन।